Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2019 paper Civil Law 2. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So this is 2019 paper, Civil Law 2, Series A, 100 marks, 50 questions, 60 minutes. रोल नंबर ही है, देखिए 50 आइटम्स हैं लिखा हुआ है एंड नो नेगेटिव मार्किंग. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विद रेफरेंस टू लिमिटेशन एक्ट. मैच करना है अब एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस. That is section 5, fraud mistake 17, acknowledgement writing 18, bar to limitation 3. तो क्या बन गया 2, 3, 4, 1. तो A is the answer. Next is 2, statement 1 है acquisition of easement by prescription has been provided under section 25 of Limitation Act which provides for use of light and air and for any building without interruption and for 20 years. Yes, ये बिल्कुल ठीक है. फिर द राइट टू एक्सेस और यूज ऑफ लाइट शैल बी एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल राइट. यस, बिल्कुल ठीक है. फिर ईच ऑफ साइड पीरियड 20 ईयर्स शैल बी टेकन टू बी अ पीरियड एंडिंग विद इन 3 ईयर बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयर इन द क्लेम टू विच सच पीरियड रिलेट्स इज कंटेस्टेड. नो, 3 नहीं है, ये 2 ईयर्स है. तो ये हो गया रॉन्ग. 1 and 2 आर करेक्ट. सी इज द आंसर. Next is 3. In case of suit relating to tort of trespass, the period of limitation of filing a suit for compensation is 3 years. C is the answer. और एक कहाँ मेंशन किया गया है आर्टिकल 87 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. Next is 4. Any suit which no period of limitation has been prescribed elsewhere in the schedule, the period limitation will be. तो कितना प्रोवाइड किया गया है लिमिटेशन पीरियड? 3 years का. D is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 113 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. Next is 5. तो फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट. क्या है? देयर शुड बी नेवर बी एन एंड टू लिटिगेशन. देयर शुड बी एन एंड, तो वो ऑब्जेक्टिव है, नेवर नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग. विजिलेंटिबूस नॉन डोरमेंटिबूस जूरा सविनियंट, ये बिल्कुल ठीक है. इसका मीनिंग क्या होता है इस लीगल मैगजीन का? लॉ हेल्प्स द विजिलेंट एंड नॉट द डोरमेंट. फिर इट बार्स द जुडिशियल रेमेडी बट ए सब्सटेंटिव राइट सेल्फ सर्वाइव्स एंड कंटिन्यूज टू बी अवेलेबल इन अदर वेज, ये बिल्कुल ठीक है. तो 2 and 3 are correct. B is the answer. Next is 6. As per section 3 of Limitation Act, in a suit instituted after the prescribed period of limitation, the plea of limitation may be waived by defendant. नहीं, cannot be ignored and such suit shall be dismissed. ये मैंडेटरी है कोर्ट के लिए देखना कि लिमिटेशन में है या नहीं है. B इसका आंसर रहेगा. Next is 7. Section 14(1) of Limitation Act provides for expulsion of time of proceeding bona fide in the court without jurisdiction and as per explanation to this section for the purpose of this section in excluding the time during which a former civil proceeding was pending. So the day on which the proceeding was instituted and the day on which it was ended shall both be counted. ये बिल्कुल ठीक है. तो A इसका आंसर हो गया. ये ठीक है, तो एक ही बताना है इसमें. तो 1 day proceeding and not the day and not the day on which, तो depends on nature. No, ये हो गया तीनों wrong. A is the answer. Next is 8. An agreement to which the consent of promisor is freely given is not void merely because consideration is inadequate. ये बिल्कुल ठीक है. Inadequacy consideration may be taken into account by the court in determining the question whether consent was freely given or not. ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक हैं, both are true. C is the answer. Next is 9. As per contract act, मैच करना है. Mistake of law 21 में है, कंसेंट कितने में है? 13 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, कोर्शन 15. तो क्या बन गया? 2143. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 10. Mr. X is a dealer in coconut oil only. He agrees to sell to Mr. Y 100 liters of oil. Find out the correct option.
द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ वॉइड अनसर्टेनिटी नो। ये जब वो एक पर्टिकुलर ऑयल ही बेचता है और वो उसके और कोई ऑयल नहीं बेचता, दैट मीन्स इट इज़ इम्प्लाइड कि भाई वो कोकोनट ऑयल ही देना चाह रहा है, इज़ वैलिड एंड नॉट वॉइड ऑफ अनसर्टेनिटी, बी इज़ द आंसर एंड दिस इज इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 29. Next is 11. Time of performance of contract is provided under which section? That is section 55. D is the answer. Next is 12. मैच करना केसेस को, हेडले वर्सेस बैक्सनडेल किस पर है, ये डैमेजेस पर है, तो ये हो गया रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पर. गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन, ये है इंडेमनिटी पर. डनलप टायर, ये किस पर, लिक्विडेटेड डैमेजेस पर. एंड कैल वर्सेस हैंनरी डुक्ट्रेनो फ्रस्ट्रेशन पर. तो क्या बन गया इसका 2413, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 13. In case of non-fulfillment of contractual obligation, only the parties to the contract can sue each other. The statement is called as privity of contract. A is the answer. Privity of consideration क्या है कि only the parties to the contract can give the consideration. And quantum merit क्या है, to do equity मतलब pay for the work done. Ubrima fides utmost faith. Next 14. Ravi's estate is sold for arrears of revenue in the provision of the act of legislation and under which defaulter is prohibited from purchasing the estate. Sham, upon understanding with Ravi, become the purchaser and agree to convey the estate to Ravi after receiving the purchase price paid from him. Decide. The agreement is void as it rendered the transaction in effect a purchase by the defaulter and would so defeat the object of the law. B इसका आंसर रहेगा. सेक्शन 23 लग जाएगा इसमें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट 15. इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द प्रोविजन अबाउट माइनस एग्रीमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 11. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 16. सुमन owes ₹50,000 टू पुष्पा अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. फिर है इट इज एग्रीड बिटवीन Suman and Pushpa and Kusum that Pushpa shall accept Kusum as her debtor instead of Suman. क्या कहना चाह रहे हैं कि P ने S को दिया है लोन, मतलब ये हो गया P इज प्रिंसिपल क्रेडिटर, ये हो गई डेटर, ठीक है. फिर एक आ गई यहाँ पर K, तो अब ये एग्रीमेंट हुआ कि K विल कम इन टू दी पोजिशन ऑफ S और S इज नाउ आउट. अब जो डेट देना है वो किसने देना है, K ने देना है. तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सुमन एंड कुसुम कम्स टू एन एंड. देखिए इन्होंने यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी है. देखिए यहाँ लिखा है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सुमन एंड कुसुम. देख ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, सुमन एंड पुष्पा के बीच में. न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो हुआ है सुमन पुष्पा एंड कुसुम के बीच में. तो ये आंसर तो यही होना चाहिए था एज पर सेक्शन 62, बट ये यहाँ पर इन्होंने ये नाम गलत कर दिए. तो आंसर वुड बी ए, सब्जेक्ट टू. यहाँ पर कहना चाहिए, यहाँ पर पुष्पा आना चाहिए. नेक्स्ट 17. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एजेंसी कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट, यस. एजेंसी इज क्रिएटेड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, यस. नेसेसिटी मे क्रिएट रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी, ये भी ठीक है. सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन ऑफ एनी अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नेवर क्रिएट रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी, नो, ये कर सकते हैं. तो डी इसमें रॉन्ग हो गया. 196 ये प्रोवाइड करता है कि रेटिफिकेशन कर सकता है प्रिंसिपल एजेंट के एक्ट्स को. तो डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 18. रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 5. बी इज द आंसर. 4 में क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन. 6 में क्या है, रिवोकेशन हाउ मेड. फिर एक्सेप्टेंस हाउ मेड 7 में. Next 19. With reference to doctrine of lis pendens, read the following. It refers to foreign transfers. No. It imposes prohibition on a transfer or otherwise dealing any property during the pendency of a suit provided the condition laid down in the section are satisfied. Yes, बिल्कुल ठीक है. फिर it creates right to be enforced to avoid a transfer made pendentality. ये बिल्कुल ठीक है. Such transfers are valid and not voidable. तो ये हो गया wrong. तो आंसर क्या रहेगा इसमें, 2 and 3 are correct. B is the answer. डिपेंडेंस कहाँ पर है, सेक्शन 52 TPA में. नेक्स्ट 20. पुरुषोत्तम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्स टू अनुपम फॉर लाइफ एंड आफ्टर अनुपम्स डेथ टू केशव एंड विभोर.
टू बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन देम और टू द सर्वाइवर ऑफ देम, देखिए सर्वाइवर लिखा हुआ है। फिर विभोर डाइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अनुपम, अब विभोर पहले ही गुजर गया तो मतलब सर्वाइवर कौन बचा, केशव। केशव सर्वाइव्स अनुपम आफ्टर अनुपम्स डेथ डिसाइड द प्रॉपर्टी, किसको जाएगी प्रॉपर्टी, वुड पास टू केशव एज पर सेक्शन 24, यस ए इज द आंसर। नेक्स्ट 21 अब मैच करना है। कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलियनेशन कहाँ मेंशन की है, सेक्शन 10 में ऑब्वियसली। एग्रीमेंट टू सेल क्या है, राइट इन पर्सोनम है। सेल है कहाँ पर, सेक्शन 54 में। एंड ये क्या है, राइट इन रैम है। फिर फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र कहाँ 53 में मेंशन किया गया है। तो क्या बन गया इसका 2314, सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट 22 विद रेफरेंस टू टीपीए राम भरण वर्सेस राम मोहित, केस किस पर है ये था रूल अगेंस्ट परपेचुटी, सेक्शन 14 पर, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 23 सेक्शन 6 ऑफ टीपीए प्रोवाइड्स दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मेयर राइट टू सू ये नहीं हो सकता, पब्लिक ऑफिस ये नहीं हो सकता, चांस ऑफ हेयर अपेरेंट ये नहीं हो सकता, ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, नन ऑफ द वर्क कैन बी ट्रांसफर्ड, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 24 इन टीपीए conditional transfer is provided under which section, 25, A is the answer. Next 25 in mortgage under TPA the mortgagor delivers the possession of the mortgage to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until the payment of mortgage money to receive rent and profits accruing from the property। ये कौन सी mortgage है, usufructuary mortgage, A is the answer। mortgage mortgager mortgage की definition कहाँ पे, section 58 A में। and बी में क्या है, सिंपल मॉर्टगेज। ई में क्या है, इंग्लिश मॉर्टगेज। कंडीशनल सेल है सी में। एंड दिस इज 58 डी, यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज। नेक्स्ट 26 वेयर ऑन अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रेडिटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट और इन टर्म स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट forthwith or on happening of an event which must happen, such interest is it is vested interest, B is the answer। सेक्शन 19 में लिखा गया है, जैसे सेक्शन 19 ऑफ टीपीए। नेक्स्ट 27 मैच करना है अब। डेफिनेशन ऑफ लीज कितने में है, 105 में। ड्यूरेशन ऑफ लीज कहाँ पर है, 106 में। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज कहाँ पर, 111 में। गिफ्ट कहाँ पर, 122 में। तो क्या बन गया इसका 4231, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 28 वेयर अ गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ डोनर्स होल प्रॉपर्टी, डोनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ड्यू बाय द डोनर एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड देयरिन। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज यूनिवर्सल डोनी, सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है इसका, 128 टीपीए। ऑनरस गिफ्ट कितने में, 127 में। एक्सचेंज कितने में है, सेक्शन 118। ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज क्लेम, सेक्शन 130 टीपीए। नेक्स्ट 29 पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू रिकवर पोजेशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज एंड ट्रांसफर्ड आफ्टरवर्ड ट्रांसफर्ड बाय द मॉर्टगेजी फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज 12 ईयर्स, ए इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है, यह आर्टिकल 61B ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट 30 फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल एंड कंप्लीट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो बोथ हो गए, सी इज द आंसर। का मेंशन किया गया सेक्शन 2J ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। Next 31 the increase in standard rent under HP Urban Rent Control Act shall be automatic and if there is any dispute between the landlord and tenant in regard to the increase and decrease in the rent, such dispute shall be decided by the controller। ये कहाँ प्रोवाइड किया गया, सेक्शन 5 के 3 में, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 32 the appointed day as per definition provided in HP Urban Rent Control Act means and refers to अगस्त 18, 1987, ए इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 2A ऑफ HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 33 द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन कंटिन्यूइंग द पोजेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी शैल बी हिज। तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, स्पाउस के पास, फिर सन डॉटर बोथ, फिर पेरेंट्स, फिर डॉटर इन लॉ। तो ये क्या बन गया इसमें, BACD, सी इज़ द आंसर। का मेंशन किया गया है, ये डेफिनेशन है 2J में टेनेंट की, उसी में एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट 34 फिर है मैच करना है अब।
डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय टेनेंट कितने में है ये? 21 में। फाइन ऑफ प्रीमियम नोट टू बी चार्ज फॉर ग्रांट रिन्यूअल टेनेंसी, दैट इज सेक्शन 8। फिर कटिंग ऑफ और विद होल्डिंग एसेंशियल सप्लाई सर्विसेज, सेक्शन 11 है। फिर लैंड ऑफ ड्यूटी टू कीप द बिल्डिंग रेंटेड लैंड इन गुड रिपेयर, इन होगा यहाँ पर, इन गुड रिपेयर, सो ये 13। क्या बन गया इसका? 1432, डी इज द आंसर। Next 35, as per provision of section 7 of Urban Rent Control Act, any agreement for payment of any sum in addition to rent in excess of such standard rent shall be null and void. D is the answer. Next 36, under HP Urban Rent Control Act, the controller shall fix the standard rent at -% of the aggregate cost of construction and market price of the land comprised in the premises on the date of commencement of the construction whole in case of non-residential building. That is 10% and 15%. B is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 4 ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट में। Next 37, where the standard rent has been fixed under section 4, no further increase or decrease in such rent shall be permissible for a period of 3 years. A is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 5 ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट में। Next 38, for conversion of a residential building into non-residential building, choose the correct option. तो फिर ये कंट्रोलर की परमिशन लेनी है कहाँ पर? सेक्शन 12 में। अब देखिए 13 तो हमने कर ही लिया था, स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और देखिए सी और ये डी जो हैं दोनों बिल्कुल सेम ही लिख दिए यहाँ पर। ये शायद 13 लिखना चाह रहे हो यहाँ पर, बट ये बिल्कुल डिट्टो कर दिए, तो ऑप्शन में तो नहीं है ऑब्वियसली, तो ए इसका आंसर है। Next 39, controller shall be deemed to be magistrate for recovery of fine under the provision of HP and Urban Control Act. कौन सा सेक्शन है ये? 31, B is the answer. Next 40, if the landlord neglects or fails to make within a reasonable time after receiving notice in writing to repair which he is bound to make under section 13, the tenant may make the same himself and deduct the expenses of such repair from the rent. फिर the amount so deducted in any year shall not exceed 1/10 of the rent payable by the tenant for that year. तो इसमें ये हो गया गलत। कैसे? ये है सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 एंड ये है उसका प्रोवाइजो, तो उसमें लिखा हुआ 1/12। ये रॉन्ग हो गया, तो ओनली 1 इज करेक्ट। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 41, मैच करना है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शंस हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज तो पता ही है कि 8 में है, तो डी का 4 देखिए, डी का 4 देखिए 2 में है, तो ये ऑप्शन हो गए आउट। एंड बी का 2 ये बिल्कुल सेम है, तो ये भी हो गया। सेक्शन 12 क्या है? वॉइडेबल मैरिज के लिए, ठीक है, तो इसमें ग्राउंड्स हैं ये वॉइडेबल करवाने के लिए मैरिज को। तो ए वाला है इम्पोर्टेंसी, तो ये हो गया 12(1)A, इनकेपेसिटी ऑफ कंसेंट 1B, और ये उसके बाद डी। तो आंसर क्या बन गया इसमें? 3214, C is the answer. Next 42, as per Hindu Marriage Act, 2 persons are said to be in the prohibited degree of relationship if one is linear ascendant of the other. Yes, बिल्कुल ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी 3G में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये है क्लॉज 1, वन वॉज द वाइफ एंड हस्बैंड ऑफ लीनियर ascendant डिसेंडेंट ऑफ द अदर, ये बिल्कुल ठीक है। ये है क्लॉज 2। फिर रिलेशनशिप इंक्लूड्स इलेजिटिमेट एज वेल एज लेजिटिमेट ब्लड रिलेशन, ये बिल्कुल ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। तो ऑल 3 आर करेक्ट, 1 2 3, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 43, अंडर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, इफ द अडॉप्शन इज टू बी टेकन बाय द फीमेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज अ मेल, द अडॉप्टिव मदर शुड बी एटलीस्ट 21 years older than the person to be adopted. डी इज द आंसर। का मेंशन किया गया सेक्शन 11 में जो ये कंडीशंस दी हुई हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, वहाँ लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट 44, एज पर डेफिनेशन अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1 person is said to be agnate of another if 2 are related wholly through males, ब्लड या अडॉप्शन से। तो बी इसका आंसर है। डेफिनेशन कहाँ पर है? 3A में, A for agnate। Next 45, the committee that evolved a uniform code of Hindu law was presided over by Sir Benegal Narsingh Rao, B.N. Rao, D is the answer. And he was also the first person
और फर्स्ट जस्टिस जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट 46 लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के प्रोविजन से मैच करने हैं ये। तो वाइफ को मेंटेनेंस का मेंशन किया गया सेक्शन 18 में, विडो डॉटर इन लॉ का प्रोवाइड किया गया 19 में, चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स का मेंशन किया गया 20 में, मेंटेनेंस टू डिपेंडेंट्स का प्रोवाइड किया गया सेक्शन 22 में। तो क्या बन गया इसका 2314 इज द आंसर। नेक्स्ट 47 विद रेफरेंस टू हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट वैलिड अडॉप्शन। वंस मेड इट कैन बी कैंसल्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। नो, ये कैंसिल नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी कैंसल्ड बाय द अडॉप्टेड फादर और मदर और एनी पर्सन बट द अडॉप्टेड चाइल्ड कैन रिनाउंस। नो, ही कैन ऑल्सो नॉट रिनाउंस। फिर है इट कैन नेवर बी कैंसल्ड बाय द अडॉप्टेड फादर और मदर और एनी अदर पर्सन नॉर द अडॉप्टेड चाइल्ड कैन रिनाउंस हिज स्टेटस एंड अटेंड द फैमिली ऑफ हिज बर्थ। ये बिल्कुल ठीक है, सी इज द आंसर, सी इसका आंसर रहेगा। का मेंशन किया गया सेक्शन 15 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। Next 48 welfare of minor to be paramount consideration has been provided in section 13 of Hindu Minority and Guardianship Act. A is the answer. Next 49 under Hindu law Geeta Jagdish Mangtani versus Jagdish Mangtani is a case on desertion. A is the answer. फिर 50 सीमा वर्सेस अश्वनी किस पर है? ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज पर, सेक्शन 8 पर। C is the answer. So friends, here we have discussed preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2019 पेपर सिविल लॉ 2। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।